Rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. Students, I am here with this chapter, the last sermon of the Holy Prophet. We have completed the explanation and we have done the exercise that is given after this chapter, in which we did some of the MCQs and then true or false and then matching the columns. And now we'll move towards a few more exercises. We will try to cover few more MCQs that could be possibly asked in the examination. Along with that, we are going to discuss some of the question and answers that could be possibly asked in the examination. Right, students? So let's begin our today's lesson. तो यहाँ पर मेरे पास कुछ MCQs हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1, the text is about the battles of Islam, the family of Prophet Muhammad, the migration and teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last pilgrimage. तो ये टेक्स्ट किसके बारे में है? लास्ट पिलग्रिमेज के बारे में, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया था. नंबर 2, which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text? कौन सा आपका लास्ट मैसेज था जो मेंशन हुआ है? People should not hurt others. Both men and women have rights over each other. Muslims are a part of one brotherhood. All of the above. तो ये सारी ही बातें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मैसेज में कही थी. तो अगेन वी हैव D, the correct option. Then we have number 3. How did the Quraysh treat the Holy Prophet? They favored him, opposed him, loved him. तो किस तरह से कुरैश ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ट्रीट किया था? They opposed him, मुखालिफत की थी. When did the Holy Prophet migrated to Medina? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब माइग्रेशन की है? 622 AD. तो ये कुछ आपकी बुक्स में से ही गिवन है इसमें. Number 5, when did the Holy Prophet settled in Medina? Which of the following groups of people lived there? वहाँ पे कौन कौन से लोग रहते थे? तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया था पहले कि वहाँ पर 4 तरह के लोग रहते थे, जिसमें मुस्लिम्स, पैगन्स, hypocrites and Jews. This is the correct option, part C. ठीक है. Number 6, where did the Holy Prophet deliver his last sermon? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो खुतबा है ये कहाँ पर दिया था? तो हमें जगह बतानी है इसके अंदर. देख लेते हैं. कुबा मॉस्क, ओरना वैली, जबल रहमत, हुदैबिया. तो इट वाज ओरना वैली. ठीक है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात की पहाड़ी पर ओरना वैली के अंदर ये खुतबा दिया था. When did the Holy Prophet perform his last Hajj? कब किया था आपने अपना आखिरी हज? तो 10th year of Hijri, 10 हिजरी में किया था. This is the correct option, part C. When was the Holy Prophet was born? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 560 AD, 561, 570, 571 AD. This is the correct option. ठीक है. And then comes the part 9, question number 9. What did the Holy Prophet ask the Quraysh? कुरैश से क्या पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या कहा था? Not to worship their false gods, not to perform Hajj, not to kill animals, not to cheat. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कहा था कि तुम क्या ना करो? तो not to worship their false gods, अपने बातिल खुदाओं की पूजा ना करो. This is the correct option. Number 10. What was the old name of Medina? मदीने का पुराना नाम क्या था? मदीनतुन नबी, यमन, यसरब, हुदैबिया. It was यसरब. ठीक है. उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो उस वक्त मदीनतुन नबी नाम रखा गया था, लेकिन बाद में पढ़ूँ वो मदीना में चेंज हो गया था. लेकिन जो सबसे पहला नाम था that was यसरब. At the time of arrival of Holy Prophet in Medina, which community was huge in number? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में कौन लोग थे? 4 कौमें आबाद थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद में कौन थे? मुस्लिम्स, हिपोक्रेट्स, पैगन्स और ज्यूज़. तो सबसे ज़्यादा ज्यूज़ थे. The correct option is D. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a respected family of Banu Abbas, Banu Umayya, Quraysh और Banu Bakr. So it is Quraysh. आपकी फैमिली का नाम क्या था? किस ख़ानदान में पैदा हुए थे? कबीला कुरैश में. Before the advent of Islam, the Quraysh used to worship. कुरैश किसकी पूजा किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले? The sun, the moon, the stars, idols. तो किसकी पूजा किया करते थे? Idols की. This is part D. This is the correct option. Then we have number 14. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in, ये repeat हुआ है, तो इसका correct option क्या है? 571 AD. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए थे और मदीना आपने हिजरत की थी. तो आप लोग इसके अंदर कन्फ्यूजन ना कर दीजिएगा कि जो है आप मदीना लिख दें. मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बाद में हिजरत करके गए थे, ठीक है। कुरैश opposed the new faith so much that the prophet had to ask the believers to migrate to, हाँ, तो फिर माइग्रेट करने के लिए कहाँ कहा था कि कहाँ चले जाएं? यस्रब, the old name of मदीना, ठीक है। This is the correct option for part question number 16, part B. Number 17. The Prophet sallallahu alaihi wasallam reached the outskirts of Yasrib on 21st June 6, 2020, 25th June 6, 2020, 28th June or 29th June. So the correct option is C, 28 जून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 AD के अंदर 28 जून को आए। After 8 days journey, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stopped at a place called, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रुके थे 8 दिनों की जर्नी के बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए थे क़ुबा में, ठीक है, जहाँ पर आपने मस्जिद तामीर की थी। दिस इज़ पार्ट ए। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ट अ मॉस्क एट मक्का, यमन, क़ुबा, नन ऑफ देम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर सबसे पहले मस्जिद तामीर की थी, या कहाँ पर मस्जिद तामीर की थी इन तीनों जगहों में से? मक्का में, यमन में या क़ुबा में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुबा में, जहाँ आप रुके थे, ठहरे थे, वहीं पर मस्जिद की तामीर की थी। नंबर 20, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered Yasrib on 28 June, 28 July, 2nd June, 2nd July. So the correct option is 2nd July 6, 2020, 22 AD. ठीक है, this is the correct option, part D. ठीक है। Number 21, the event of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migration to Medina is known as, आपकी जो हिजरत है वो क्या कहलाती है? मेराज, माइग्रेशन, हिजरा या एडी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हिजरा कहलाती है, ठीक है। नंबर 22, दिस इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर एज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौन सा इवेंट है वो आपकी इस्लामिक कैलेंडर की इब्तिदा करता है? कौन सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मंसूब कौन सा इवेंट है? बर्थ ऑफ द प्रॉफिट, मेराज, डेथ ऑफ द प्रॉफिट या द प्रॉफिट्स माइग्रेशन टू मदीना? तो हिजरी कहाँ से स्टार्ट होता है? हिजरत से हिजरा है, हिजरी है। तो आपकी याद रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माइग्रेशन है वो हिजरत कहलाती है। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो डी है, दैट इज़ द प्रॉफिट्स माइग्रेशन टू मदीना, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए नंबर 23, आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्रब वाज सून रीनेम्ड। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो उसके फ़ौरन बाद यस्रब का नाम क्या रख दिया गया था? मदीनतुन नबी, अन्नबी, द सिटी, ऑल ऑफ देम। तो क्या नाम रख दिया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद? इट वाज मदीनतुन नबी, ठीक है। 24, मदीनतुन नबी मीन्स द सिटी, द प्रॉफिट, द सेंटर, सिटी ऑफ द प्रॉफिट। मदीना सिटी को कहते हैं, नबी नबी को कहते हैं, प्रॉफिट को कहते हैं। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिटी ऑफ द प्रॉफिट, नंबर डी। नंबर 25, in Medina Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam succeeded in drawing up the constitution of Medina, also known as, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आइन बनाया था मदीने में आने के बाद, तो वो उसका नाम क्या था? चार्टर ऑफ मदीना, द एग्रीमेंट ऑफ मदीना, सरमन ऑफ मदीना, ऑल ऑफ देम। इट वाज चार्टर ऑफ मदीना। Number 26, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook his farewell pilgrimage to Makkah in the year 7 AH, 10 AH, 9 AH या 11 AH. So what is the correct option? It's 10 AH. ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में अपना हज किया है। All mankind is from Adam and Adam was created from water, fire, dust या stone. It is dust. No Arab is superior to another Arab, a non-Arab, a Turk, an Egyptian. So of course no Arab is superior to a non-Arab या another Arab, a non-Arab, यानी अरब को अजमी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे MCQs कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरह के MCQs और प्रोवाइड किए जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।